Hello everyone, welcome to our channel The Kraken. I am Sumant. Let's start the session for today. So in this session we are going to discuss, this is the another part of the, we are already discussing for the module A of BFM, Bank Financial Management. So these are the questions we have already discussed, these are the last 10 questions we have already discussed in the previous session. So just refer the previous session. So here we are going to discuss some more questions related to this module A of BFM. So these are very important questions, right? So before attempting this session, just before attempting all the each questions, just pause the video and try to answer by yourself rather than match the answer with the correct answer, right? So चलिए start करते हैं आज के session. This is the next question. This is the question number for today. This is the question number 1. But in this series, as we have already completed the previous 10 questions, so this is the question number 11. Which of the following currency is not quoted as indirect quote or indirect rate? So इनमें से जो करेंसीज है which is not quoted as indirect quoted, so कौन सा वाला है जो कि indirect quote नहीं होता है, ठीक है? So this is first option, next euro. So the correct answer is US dollar. So US dollar is not quoted as indirect quote rate, right? So here option number B is the correct answer. So as we have already discussed, see here in indirect quote the local currency is variable and foreign currency is fixed, ठीक है? as I have already told indirect, so in case of indirect quote हमारा क्या हो जाएगा, लोकल करेंसी क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है? और हमारा जो डायरेक्ट क्वोट के केस में हमारा जो लोकल करेंसी है दिस इज कांस्टेंट, दैट इज फिक्स. Just try to remember this answer, and this currency is not quoted as indirect quote or indirect rate, ठीक है? Option number B is the correct answer. So next है, these are the next questions. Okay, which of the following shipments out of India are exempt from export declaration forms? So यहाँ पर कुछ shipments दिया गया है, कुछ shipments है, those are the shipments out of India and some are exempt from the export declaration form. So export declaration form से ये सब exempted. So कौन सा वाला है यहाँ पर देख सकते हैं. First one है, these are the options. Goods or software when accompanied by declaration by the exporter that they are not more than 50,000 USD. Goods and gift of goods, just remember gift of goods valuing not over 50,000 along with, this is rupee, Indian rupee, 50,000 along with declaration of export. Gift of goods valuing not over rupee, Indian rupee 5 lakh along with declaration of export. Goods not exceeding in the value of 10,000 USD per transaction exported to Myanmar under bilateral trade agreement. So from these four options the correct answer is option number C. So this one is exempt from export declaration form and all three are not exempted from export declaration form, ठीक है? So this is one, gift of goods, अगर कोई goods that is in the gifted form then valuing not more than Indian rupee 50,000 rupees, sorry 5 lakhs rupees along with declaration of export. So ये वाला जो है this is exempt from the export declaration bill. So option number C is the correct answer, correct? So here just try to remember the values, how much value that is exempted from the export declaration bill in the form of gift of goods and in rupee form that is 5 lakh. Accordingly you can answer, ठीक है? So here is the next question. A bank received an LC for 2 USD2 MIO issued by MT 700 opened on January 25th
2011 the credit calls for shipment of 200 tons of good quality wheat cultivated in पंजाब। ठीक है, सो एक जो हमारा एक बैंक है वो एक एलसी रिसीव किया, कितना 2 मिलियन, इसको मिलियन पकड़ सकते हैं। ठीक है, सो 2 मिलियन यूएसडी, 2 मिलियन का एलसी उनको मिला है। ठीक है, इशूड बाय द MT700, सो कंपनी MT700 के द्वारा इशू किया गया है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ओपन, ये जो ओपन किया गया था कब, जनवरी 25, 2011। ठीक है, सो द क्रेडिट कॉल्स फॉर शिपमेंट ऑफ 200 टन्स ऑफ गुड क्वालिटी कल्टिवेटेड इन पंजाब। सो पंजाब में कोई एक फॉर्म है जो कि क्या कल्टीवेट करता है, दैट इज द व्हीट। सो ये लोग क्या करेंगे ना, वो जो गुड्स है 200 टन का गुड्स है वो लोग इसको शिपमेंट करेंगे। सो लेटर बैंक क्या करेंगे ना, एलसी आया है, सो जब शिपमेंट हो जाएगा उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद बैंक ये जो एलसी है कस्टमर को हैंड ओवर करके दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी एज वेल, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा एलसी। सो यहाँ पर जो है मेन हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है गुड्स क्या जाएगा, हमारा एक्सपोर्टर जो MT700 के पास जाएगा, और जो एलसी के फॉर्म में जो प्राइस है सो दैट विल बी गिवन बैक टू दिस फॉर्म इन द पंजाब। ठीक है, और बैंक यहाँ पर आज मीडिएटरी काम कर रहा है। ठीक है, हमारा इंडियन का है ये है, और वहाँ पर जो फॉरेन है वहाँ पर भी उनका जो होगा एक बैंक होता है। ठीक है, सो in this process my question is like what is the time available for issuing bank for examination of documents under UCPDC 600। सो यहाँ पर जो इशूइंग बैंक है उनके पास एग्जामिन जो डॉक्यूमेंट है उसको एग्जामिन करने के लिए बैंक के पास इशूइंग बैंक के पास कितने टाइम रहता है। ठीक है, दैट इज 21 days, reasonable time not exceeding 7 days, reasonable time not exceeding 7 days, 5 banking days। See here 21 days, reasonable time not exceeding only normal 7 days, and reasonable time not exceeding 7 banking days। banking days का मतलब तो पता होगा, दैट इज जैसे कि यहाँ पर एक वीक है, ठीक है, अंदर एक कोई हॉलीडे आ गया, कोई संडे आ गया, सो ये जो है छुट्टी का टाइम होता है, दिस इज द हॉलीडे। सो अगर बैंक उस दिन छुट्टी है, हॉलीडे है, सो देन दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड एज द बैंकिंग डेज, ओनली वर्किंग डेज, वी कैन से बैंकिंग डेज एज द वर्किंग डेज फॉर द बैंक। So here correct answer is next one is 5 banking days। So here correct answer is जो बैंक के पास टाइम रहता है टू एग्जामिन जो डॉक्यूमेंट्स, उसका करेक्ट आंसर है 5 बैंकिंग डेज। 5 वर्किंग डेज रहता है फॉर द बैंक्स, दैट इज द 5 बैंकिंग डेज। सो करेक्ट आंसर इज बैंक के पास कितना टाइम रहता है, 5 बैंकिंग डेज, करेक्ट। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, दिस इज वन इज द रिस्क अराइजिंग ओइंग टू नॉन एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ए काउंटर पार्टी इज द डैश रिस्क। सो जो रिस्क रहता है ड्यू टू नॉन एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ए काउंटर पार्टी इज डैश रिस्क। सो एनी डिस्प्यूट और एनी रिस्क रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब देखिए ए है, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई उनके बीच में कोई डील हुआ है, एनी कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज रिलेटेड टू द लॉ, दिस इज लीगल इशू। ठीक है, कोई भी इशू होगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू लीगल। जो ऑप्शंस था देखिए, लीगल, सिस्टमेटिक, क्रेडिट, लिक्विडिटी। सो क्रेडिट नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, ये तो रिलेटेड है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है, नॉन एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सो ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आपका कीवर्ड है, सो ये हो गया हमारा लीगल रिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द नेक्स्ट वन, द रिस्क ऑफ फेल्यूर ऑफ द काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी, द रिस्क ऑफ फेल्यूर ऑफ द काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस द एक्सपोजर ऑफ द अदर पार्टी टू कवर the transaction at the ongoing market rates is the dash risk। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए, the risk of failure of the counterparty before maturity of the contract, before maturity of the contract, ठीक है, failure of the counterparty and hence the exposure of the other party to cover the transaction at the ongoing market rate is known as dash rate। सो जैसे कि हमारा अगर काउंटर पार्टी ए है, हमारा बी है, तो बी क्या किया ना, ए ने आपका दे दिया, गुड्स दे दिया, पर बी क्या किया ना, उसके पास जो होता है ना, मतलब है ही नहीं कैपेबिलिटी की वो पे बैक करे। सो ये हो गया हमारा, ये हो गया काउंटर पार्टी,
और ये हो गया हमारा मेन प्राइमरी। सो यहाँ पर ये जो हो गया ना, काउंटर पार्टी इज फेल्ड टू पे बैक दिस और टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। सो इन दैट केस जो होता है, ये जो पार्टी के पास एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर, जो भी उनका लॉस हुआ है उसको भरपाई करने के लिए, और उसका जो रेट होगा एट द ऑनगोइंग मार्केट, जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उसी के अंदर ही जो है ट्रांजेक्शन उसका इंक्लूडेड होगा। सो ये जो रिस्क है उसको क्या बोलते हैं? So this is the country risk, regulatory settlement, pre-settlement. Obviously, before the settlement, see before maturity मतलब क्या? सेटलमेंट होने से पहले ही ये वाला रिस्क अराइज हो गया। सो दिस इज नोन एज प्री सेटलमेंट रिस्क, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। So here next question is a mismatch in assets and liability and receivables और payables is drastic। जब हमारा कोई भी asset है एंड रिसीवेबल्स के बीच में एक मिसमैच रहता है, और लायबिलिटीज एंड पेबल्स के बीच में कोई एसेट और लायबिलिटी, रिसीवेबल्स और पेबल्स के बीच में अगर कोई भी रिस्क रहता है, ठीक है, जैसे कि एसेट हाई हो गया, ये दोनों सेम होना चाहिए ना हमारा बैलेंस शीट में। हमें पता है कि एसेट लाइट शुड बी बैलेंस्ड, जितना आपके पास एसेट है अकॉर्डिंगली आपका लायबिलिटी भी रहना चाहिए, ठीक है, सो दैट योर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सो दैट इज वायबल, ठीक है। सो अगर कोई मिसमैच हो गया, बाई चांस ये ऊपर हो गया आपका एसेट ज़्यादा हो गया लायबिलिटी, जैसे कि इसमें तो एसेट ज़्यादा हो गया लायबिलिटी कम हो गया, नो इशू। और अगर एसेट कम है एंड लायबिलिटी ज़्यादा हाई हो गया है, देन वहाँ पर आपका फर्म के ऊपर थोड़ा टेंशन के टाइम आ जाता है, ठीक है। सो जैसे कि आपका रिसीवेबल्स मतलब आपके पास कम आना है पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉकेट से देना पड़ेगा, देन अगर आपके पास नहीं होगा देन हाउ कैन यू पे? सो उस टाइम आपका जो फंक्शन ऑफ दैट फॉर्म विल बी इन डेंजर। सो इस रिस्क को हम क्या बोलते हैं? ये जो मिसमैच होता है इसको बोलते हैं, जैसे हो गया हमारा क्रेडिट, एक्सचेंज, गैप, इंटरेस्ट, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शन है, पर यहाँ पर देखिए मिसमैच हो रहा है, दैट मीन्स एसेट है, लायबिलिटी है, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब आपके पास आ रहा है एंड आपको पे करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ऑन इनगोइंग है और आउटगोइंग है, ये दोनों के बीच में जो हमारा क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट है कि मेंटेन क्या होना चाहिए, ये जो प्रोसेस है ये हमारा लिक्विडिटी मेंटेन होता है, मतलब जितना आ रहा है उतना आपके पास अगर जा रहा है दैट मीन्स आपके पास कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट नहीं है, एक्सचेंज है, गैप नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट हो सकता है पर और कुछ केसेस में, पर यहाँ पर जो ये हो गया आपका नॉन, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी प्लस आपके पास है इतना एसेट, आपके पास उतना लायबिलिटी होना चाहिए। आपके पास अगर लायबिलिटी भी है देन आपके पास उतना एसेट होना चाहिए कि आपको अगर कोई इशू हो गया देन आप उस एसेट को यूज करके आप उसको पे बैक कर सके उस लायबिलिटी को। ये हो गया आपका लिक्विडिटी रिस्क। और यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रिस्क हो सकता है कब, किस केस में? जैसे कि बैंक ने, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने क्या किया है ना, आपको जो डिपॉजिट के लिए, देखिए हमारा क्या होता है, डिपॉजिट के लिए हमने बैंक कितना है अभी पकड़ लीजिए 2.75 हो गया, पर 3% दे रहा है बैंक ने डिपॉजिट के लिए, और लेंडिंग से बैंक ऑन कर रहा है अमाउंट समथिंग 7% से। सो दिस इज लेंडिंग। सो यहाँ पर क्या है ना, देखिए उनका प्रॉफिट हो रहा है 4% का, ठीक है, पर जब उनका पॉकेट से जाएगा, जैसे 7% से वो ला रहे हैं डिपॉजिट, मतलब हमारा फिक्स डिपॉजिट भी हो गया और कुछ डिपॉजिट भी हो गया। अगर उन्होंने आज्यूम कर लीजिए वो वहां पर 10% दे रहे हैं, 7% ले रहे हैं और 10% दे रहे हैं, दैट मीन्स आपका 3% क्या हो गया, ये नेगेटिव में आ गया, दैट इज लॉस हो रहा है बैंक का, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उनका जो बैलेंस है मेंटेन नहीं हो रहा है, जो ये जो इंटरेस्ट इनकम बैंक का मेन सोर्स रहता है, सो वहां पर ये नहीं हो रहा है। सो इस केस में ये रह जाएगा हमारा, ये जो इंटरेस्ट मिसमैच होता है ना, सो इस केस में ये रहेगा इंटरेस्ट रेट रिस्क। पर यहाँ पर एसेट लायबिलिटी एंड रिसीवेबल पेएबल के बीच में जो भी आपका मिसमैच होता है दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस, राइट। सो हियर अगर हम ऑप्शन नंबर ई कर देंगे, दिस इज लिक्विडिटी रिस्क। सो हियर ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। और इंटरेस्ट रेट रिस्क किस केस में होगा आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली यू गॉट इट। So this is very important one. So let's see the next question. Authorized persons, that is category 1, was earlier known as dash. So these are options: full-fledged money changers, restricted money changers, authorized dealers, and none of these. So those are in the category 1, authorized persons. So they are known as authorized dealers. ठीक है। सो ये जो ऑथराइज पर्सन 1, 2, 3 एंड 4 कैटेगरी है ना, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लीजिएगा, एंड अगर हुआ तो आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस।
सो आप अपने से भी इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लीजिएगा सो दैट यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पर जो कैटेगरी 1 का ऑथराइज पर्सन है उसको बोला जाता था ऑथराइज्ड डीलर्स, एडी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन कैटेगरी 2 was earlier known as this: full-fledged money changers, restricted money changers, authorized dealers and non authorized dealer। तो हमारा हो गया कैटेगरी 1 वाला। सो ये जो ऑथराइज्ड कैटेगरी 2 इज नोन was earlier known as full-fledged money changers। Option number A is the correct answer. So just try to remember this term. So this is the next one। authorized persons कैटेगरी 3 अभी 2 3 हो गया, was earlier known as। सो फुल फ्लेज्ड हो गया हमारा 2 टाइप कैटेगरी 2 और ये हो गया 1। सो ये हमारा है रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स। सो ऑथराइज्ड पर्संस इन कैटेगरी 3 was earlier known as restricted money changers। So option number B is the correct answer for the category 3। So here is the our final question for today's class। Which of the following is not quoted as 100 units of foreign currency equal to INR, Indian rupees। सो कौन सा है जो कि हमारा नॉट क्वेटेड आज 100 रुपीज ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू INR। सो कौन सा वाला एक फॉरेन करेंसी है जो कि हमारा इक्वल टू INR में कन्वर्ट करने के लिए हमारा नहीं होता है, नॉट क्वेटेड। सो केनियन शिलिंग्स, इंडोनेशिया रुपया, जापानीज येन, ये सब क्वेटेड है। जो नहीं है दैट इज ईरानी दिनार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें से हमारा फॉरेक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था और उसमें आपका रिस्क का क्वेश्चन आ रहा था। सो होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग सम मोर एंड मोर MCQ फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर एडिंग सम वैल्यूज, मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो till the next one, अगर आपको अच्छा लगा है then do like, share and subscribe the channel and click the bell icon so that you will get all the latest notifications from our channel regarding your exam preparation, right? So share this session with your colleagues, friends, those who are preparing for the exams so that it can also be beneficial for them, right? So चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए and keep learning। Thanks for watching।